types of ADR. Types of ADR. Types of ADR. Now, what are the different types of ADR? Anybody? Of course, the first thing that comes to your mind is arbitration. That arbitration is a type of ADR, right? What does arbitration exactly mean? Arbitration का मतलब क्या होता है? What does it mean? Anybody? How does arbitration work? What does it mean? It is a So the answer that I've received is, it is basically like a matter is being referred through an agreement to an arbitrator for relief. कि arbitrator से हमें relief मिले, इसलिए agreement करके हम एक matter को refer कर रहे हैं. Anybody else? Somebody wants to add to this? It is a quasi judicial procedure. Okay. Anybody else? It is binding upon the part. Okay. Yes. Anything else? Nobody? Court can also appoint the arbitrator. Parties can also choose the arbitrator. Okay. 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 Anything else? See, one thing that we have always thought about arbitration, I will not say no. One thing that we have always thought about arbitration is that there should be a pre-existing agreement for arbitration. No. Arbitration के लिए agreement की जरूरत नहीं होती. ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, but yes. Arbitration के लिए agreement की जरूरत नहीं होती. Arbitration के लिए consent की जरूरत होती है. और वो consent agreement के through भी हो सकता है. That's fine. But always you do not need an agreement. Even with the consent of the parties, the matter can go for arbitration, and that is a valid process, and that will even be binding on the parties. अब इसकी थोड़ी थोड़ी और डिटेल्स पे हम जाते हैं. One by one, we'll write the types of arbitration. We'll discuss them after that one by one, and then we'll go to the next topic. So write down first arbitration. We'll introduce these ADR processes, and then we'll understand. So this is what governs arbitration. Basically arbitrator appoint करा जाता है. बहुत simple तरीके से अभी हम समझ रहे. We are not going into details. What we are doing is, there are two parties A and B. There is some sort of dispute between them. To resolve this dispute, they basically appoint a third person. कि भाई ये वो व्यक्ति होगा. You remember the person I was talking about? अब हो क्या रहा है? वो था एक unregulated process, something happening inside your house. This now becomes a formal process. Formal yet not complicated. तो आप एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हो कि भाई तुम आओ और तुम हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करो. They act as private judges, meaning ultimately they are also giving their judicial opinion, and they pass something which is known as an award. They pass an award. Award meaning they are basically giving their decision regarding a particular matter to somebody. Award किसी को दिया जाता है, recognizing that yes, you have done something, or yes, you are entitled to something, right? You award a person saying that okay, you are entitled to the first position. Giving an award is same to passing an award. And what do you mean by passing an award here? They basically pass an award. That means they tell somebody that you are entitled to this right. That is the significance of using the word award here. एक तो थोड़ा differentiate करना था. Judgment और decree जो एक civil court में judge pass कर रहे हैं, उनसे arbitrator को differentiate करना था. That is why we use the term award. So they pass an award wherein the rights and liabilities of the parties are decided and it is binding. And for arbitration,
we refer the Arbitration and Conciliation Act of 1996, right? Number 2, second, mediation. अब मीडिएशन क्या होता है? What do we understand by the term mediation? Huh? What do we mean by mediation? अगर वो आर्बिट्रेशन था तो मीडिएशन क्या है? हाँ, क्या होता है? You are saying that the decision is not binding. तो क्या फायदा हुआ आने का? In mediation and arbitration. Mediation में there is a third party who offers a resolution. आपको प्रॉब्लम है, राइट? और उसका सोल्यूशन एक थर्ड पार्टी आपको दे रही है. आर्बिट्रेटर भी सेम कर रहा है, बट आर्बिट्रेटर का सोल्यूशन जो होता है वो बाइंडिंग होता है. मीडिएशन में इट इज मोर ऑफ अ सजेशन. सजेस्ट करा जा रहा है कि भाई देखो, पूरा मैटर सुनने के बाद, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि हमें लगता है ये ठीक है, बाकी जो तुम्हारी मर्जी हो करो. मीडिएशन उस तरीके की चीज है कि हमें लगता है सारी बातें सुनने के बाद अल्टीमेटली दिस इज व्हाट शुड बी डन, दिस इज व्हाट शुड बी डन एंड दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम. आप दोनों के डिस्प्यूट का ये बेस्ट सोल्यूशन है, बट ये अल्टीमेटली एक सजेशन ही है. इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. It is not binding on the parties. It is only a suggestion which is given to the parties. ठीक है? कॉम्प्रोमाइजिंग तो होगा जहां पार्टीज उस सोल्यूशन को मान ले, राइट? यहां पर पहले तो पार्टीज का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है. वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू अनटैंगल कि भाई पार्टीज के बीच में बहुत प्रॉब्लम है, नफरत है, सोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सबसे पहले सॉल्व करा जाए. उसको सबसे पहले सॉल्व करा जाए. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे कि पार्टीज इसको मानती है कि नहीं मानती. इन मीडिएशन, आर्बिट्रेशन में जो हो गया वो मानना ही पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल, वरना लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करके अपील एक्सेट्रा होगी उसकी. बट यहां पर मीडिएशन की जहां तक बात है, मीडिएशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज मोर ऑफ अ सजेशन. अब पार्टीज उसको मान लेती हैं तो मैटर उनका सेटल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, खत्म हो गया. यू कैन कॉल इट अ कॉम्प्रोमाइज, बट वहां मैटर सेटल हो जाता है. बट अगर पार्टीज नहीं मानती मीडिएशन को, बैक टू स्क्वायर वन, यू विल गो टू द कोर्ट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दीज टर्म्स. हम इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रहे, ना इधर आर वी क्लोजिंग दीज टर्म्स हियर. वी जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस कि भाई टाइप्स हैं क्या और उनका बेसिक मतलब क्या होता है. जैसे अभी मीडिएशन का हमें नहीं मतलब पता था कि एग्जैक्टली क्या होता है. इट इज अ सजेशन, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द पार्टी. अच्छा, अगर आर्बिट्रेशन वो था, ये मीडिएशन है, तो कंसिलिएशन क्या है? व्हाट इज कंसिलिएशन? अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम. व्हाट इज कंसिलिएशन? अच्छा चलो, कंसिलिएशन तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में ढूंढ भी सकते हैं, मिल भी जाएगा. सेक्शन 2 क्लॉज H में मिल जाएगा. You will find it in section 2 clause H of the Arbitration and Conciliation Act of 1996. But the problem is, what do you mean by conciliation? Anybody? दोनों पार्टी के लॉयर? नहीं, जरूरी नहीं. लॉयर मीडिएटर भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. लॉयर शुड बी मीडिएटर्स, है ना? सर कह रहे थे ना. कंसिलिएशन क्या होता है? अगर वो आर्बिट्रेशन था, ये मीडिएशन था, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिलिएशन? सी, कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? कंसिलिएशन में देयर इज अ थर्ड पार्टी. अगेन, द थर्ड पार्टी प्लेज अ वेरी प्रोएक्टिव रोल. वो प्रोएक्टिवली दोनों लोगों के बीच में सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं. और अगर वो सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लिया आपने, जैसे मीडिएशन में बाइंडिंग नहीं था, मानो या ना मानो, लेकिन अगर सेटलमेंट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो वो कहते हैं कि भाई दिस इज माय डिसीजन, इफ दे एक्सेप्टेड. आर्बिट्रेशन में कोई चॉइस नहीं है आपके पास, मीडिएशन में बाइंडिंग होता ही नहीं है, मानो या ना मानो. बट लेकिन अगर आपने कंसिलिएटर का या कंसिलिएशन में आपने जो सेटलमेंट अग्रीमेंट है, जो फाइनली डिसाइड करा है कंसिलिएटर ने, भाई तुम्हारे बीच में मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम है, बोलो मानते हो. अगर नहीं मानते, गो टू द कोर्ट. अगर मानते हो तो वही डिसीजन बाइंडिंग हो जाता है. अब पीछे नहीं हट सकते.
मीडिएशन में जा सकते हो बिकॉज बाइंडिंग है ही नहीं कुछ भी, मीडिएशन में जा सकते हो बिकॉज बाइंडिंग नहीं है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन? आर्बिट्रेशन में यू डोंट हैव अ चॉइस, यू विल हैव टू अग्री टू दैट डिसीजन एल्स गो इन अपील. मीडिएशन में देयर इज नो बाइंडिंग डिसीजन एट ऑल, इट्स जस्ट अ सजेशन. मानो तो भी बाइंडिंग नहीं है, नहीं मानो तो भी बाइंडिंग नहीं है. लेकिन कंसिलिएशन, कंसिलिएशन में अगर आपने नहीं माना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उस डिसीजन को मान लिया तो इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन यू. फोर्थ पॉइंट, लोक अदालत. अब लोक अदालत क्या होता है? सी, इफ यू टॉक अबाउट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सिबल? Are the directive principles of state policy enforceable in the courts of law? No. Which provision tells us this? Section keh raha hu, Article 37. Article 37 of the Constitution says that the directive principles of state policy are not enforceable, but they shall be fundamental in the governance of the country. कंट्री को गवर्न करने के लिए और लॉज बनाते समय स्टेट को, स्टेट एज इन इंडिया, स्टेट को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है. दे आर लाइक अ बीकन. बीकन मतलब अंधेरे में जैसे आपको एक रोशनी दिखती है ना, वो है, उसको फॉलो करते हुए ही आपको लॉज बनाने हैं. एंड वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. इट इज आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, शगुन देकर आते हैं, है ना? ये सुना है आपने कभी? 51 रुपए शगुन देकर आते थे पहले के जमाने में, याद है? किसी और के घर जाना, उनसे रिलेशन मेंटेन करने के लिए 51 रुपए का सगन दे देते थे ना कि भाई सगन लो. ये सुना है कि नहीं सुना? या किसी और धरती से आए हो? सुना है ना ये, राइट? 51 रुपए का सगन, किसी और के घर जाके, बाहर जाकर किसी थर्ड पर्सन के घर जाके अच्छे रिलेशन बनाना, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. किसी बाहर के घर पे देखो 51 में यही लिखा है, वहां पर आर्टिकल 51 में यही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में. 50-50 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, 50-50 आर्टिकल 50. सो सिंपल. अब बताओ लोक अदालत जो मैं बता रहा था, आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स. Similarly, if you see, 11th schedule was added in the constitution by the 73rd amendment. The 12th schedule was added by the 74th amendment. मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आरजीएस देना है कि नहीं देना, पूछेंगे उसमें. 73rd amendment 11th schedule, 74th amendment 12th schedule. It has been added. Why? They are all talking about local governance. They are saying organize municipalities. They are saying go for panchayats. ग्रासरूट लेवल पे हमें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करनी. कोर्ट तक जाए ही क्यों, हम पंचायत में इस डिस्प्यूट को सेटल करेंगे. हम क्यों जाएं कोर्ट तक? हम अपनी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो है उनको इतना केपेबल बनाएं कि अल्टीमेटली वो हमारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके. हमें इतना खर्चा, इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतनी कॉम्प्लिकेशन झेलनी ना पड़े कोर्ट में जाने के लिए. That is why Lok Adalats have also been set up to further this objective and goal of our forefathers and to further the ends of justice as enshrined in the Constitution. कि हमें Constitution का डायरेक्टिव मिला हुआ है. See, cherishing the ideas of our freedom struggle, it is our fundamental duty. और अगर कोई ये सोच रहा है कि fundamental duty enforceable नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो. फंडामेंटल ड्यूटी को भी लॉ बना के एनफोर्स कराया जा सकता है. वन सच एग्जांपल इज नवीन जिंदल्स केस रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग. रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी एनफोर्स कराया जा सकता है प्रोवाइडेड यू मेक अ लॉ फॉर इट. सो व्हाट हैज बीन द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टू बी रिलेटेड विद लोक अदालत. व्हाई? बिकॉज वी वांट द पीपल टू कम फॉरवर्ड, हेल्प इन गवर्नेंस, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. अपनी परेशानियों को ग्रासरूट लेवल पे अपने आप सॉल्व करके और फिर आगे लेकर जाना सोसाइटी को एज अ होल. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन लोक अदालत्स. कि हम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़े, फॉर्मल रेगुलेटेड प्रोसेस, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन पे भी नहीं जाकर हम लोक अदालत में जाएं, हम आपस में बैठ के चर्चा करें. आई टेल यू माई हाउस हेल्प,
There have been 3-4 instances where she has told me कि मैं आज भैया छुट्टी करके जाना चाहती हूँ. She stays nearby only. मैंने कहा क्या हुआ? She said that I will have to go for a पंचायत. मुझे पंचायत के लिए जाना है. किसी पड़ोसी का डिस्प्यूट है, वहां मुझे जाना है पंचायत के लिए, या उनका ही घर में कोई डिस्प्यूट है, उनको पंचायत के लिए जाना है. There have been many instances she said this to me. Imagine if this is the state of affairs, it is very good. Why? Because she does not need to roam around, go to the police, go to an advocate, spend money, go to the court. Her disputes are being resolved in the panchayat itself. Her disputes are being resolved in the panchayat itself. Similarly, लोक अदालत. लोक अदालत का तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस बहुत बारी सेव करके भेजा होगा. इसलिए चलान के लिए, गाड़ियों के चलान के लिए बहुत सारे लोगों ने करा होगा ना. नहीं करा, कोई बाकी कर लेना, है ना. चलान अगर बहुत सारे हों तो उनको बहुत कम में लोक अदालत में सेटल भी करवाया जा सकता है. वाई? उन चलान के लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट की प्रोसीडिंग होगी, मैं जाऊंगा जज के सामने खड़ा होऊंगा, बात करूंगा, लॉयर लेकर जाऊंगा, क्या फायदा? क्या फायदा? इट्स बेटर आई पे फॉर द चलान, और मुझे उतना पे नहीं करना जितना मेरे मैसेज में आ रहा है कि भाई 2000 रुपए का चलान है, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर मैं पैसे पे कर रहा हूं पर इतने नहीं है, गलती हो गई, गलती से हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे विल लिसन टू योर लोक अदालत में. वो या तो आपके चलान कुछ माफ कर देंगे, या उस चलान पे वो आपको बोलेंगे कि आप एक अमाउंट डिपॉजिट करो एंड वील कंसीडर द मैटर क्लोज्ड. की बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना, रेड लाइट जंप कर ली हो, क्या हो गया, कोई बात नहीं, है ना. बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जीवन में, रेड लाइट ही तो है, कोई बात नहीं. गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, इट्स फॉर योर एंड एवरीबडी एल्स सेफ्टी. पर हो गया तो क्या करें हम? तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर की जगह हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, लोक अदालत में जाओ. इनफैक्ट देयर आर परमानेंट लोक अदालत ऑल्सो, जो किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं होती, पर वो परमानेंटली दे आर सेटल्ड. एंड उन लोक अदालत में जो नॉर्मल, जैसे आरडब्ल्यूए और रेसिडेंट्स का डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट हो गया, डॉक्टर पेशेंट का डिस्प्यूट हो गया, वो जा सकते हैं नेशनल लोक अदालत में. एंड विदाउट गोइंग थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर दे कैन वेरी वेल डील विद इट इन द नेशनल लोक अदालत ऑल्सो. इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जल्दी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है.